two vectors are connected in tail to tail or head to head combination. Parallelogram law is applicable. Parallelogram law is applicable when two vectors are connected in tail to tail or head to head combination. Tail to tail or head to head combination. Parallelogram law is applicable when two vectors are connected in tail to tail or head to head combination. Okay, stop writing and look at the board. This is vector, suppose this is vector P, this is vector Q. So this vector is called resultant. Theta is angle between vector P and vector Q. Alpha is angle between resultant and vector P, and beta is suppose angle between resultant and vector Q. Okay. So this vector R can be written as, first point R vector can be written as vector P plus vector Q. Vector P plus vector Q can be written as vector Q plus vector P, because addition of two vectors satisfy commutative law. Addition of two vectors satisfy commutative law. अभी प्रूव करेंगे क्लास में से, घबराओ मत, पहले ये पॉइंट देख लो, इसको लिखो कॉपी पर. रिजल्टेंट वेक्टर vector R is equal to vector P plus vector Q, and this P plus Q vector can be written as vector Q plus vector P, because addition of two vectors satisfy commutative law. अभी प्रूफ करते हैं थोड़ी देर में, तुरंत प्रूफ करते हैं इसको, देखते रहो, लिख लो. So this is resultant vector. The next point, magnitude of resultant. Mod of vector R, mod of P plus Q, mod of Q plus P, and this is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This is the magnitude of resultant of two vectors. Very important. इसे प्रूफ करके दिखा देंगे अभी, तुम बस अभी लिखो फॉर्मूला को. In first case, resultant vector can be written as P vector plus Q vector. P plus Q is equal to Q plus P. Both are same because addition of two vectors satisfy commutative law. नोट कर लिए, बराबर लिखते जाओ. Theta is angle between vector P and vector Q. Smaller angle. पहले पिछले लास्ट लेक्चर में बताए हुए थे, जो थीटा है वो स्मॉलर एंगल होता है. लिखे कि नहीं? Okay. Alpha and beta are called direction of resultant. R vector is called resultant vector. Alpha and beta are called direction of resultant. इसके बारे में समझाएंगे अभी तुम्हें. देखो तो, alpha and beta are direction of resultant. Direction of resultant. Alpha and beta are called direction of resultant. एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कैसे जल्दी से निकाल लेंगे एग्जाम में, प्रूफ करके भी दिखा देंगे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जिसको लगाना तो निकल जाएगा. चलिए देखो, tan अल्फा किसके साथ अल्फा बना रहा है? रिजल्टेंट आइदर P और Q. P जिसके साथ अल्फा बना दो उसे छोड़ दो, न्यूमरेटर में डालो Q sin थीटा. Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P plus cos थीटा. P plus Q cos theta. Alpha is equal to tan inverse Q sin theta divided by P plus Q cos theta. This alpha is called direction of resultant. Similarly, beta. तुम्हें बताओ ना बीटा का वैल्यू क्या होगा? किसके साथ बना रहा है बीटा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इसका बना रहा है बीटा किसके साथ? P sin theta divided by Q plus P cos theta. Again this, sorry, tan beta, this is tan beta. So beta is equal to tan inverse P sin theta
divided by p q plus p cos theta. Alpha and beta are called direction of resultant. Are you getting my point? Yes or no? अभी सिर्फ फॉर्मूला बताएं, प्रूफ करके भी दिखाएंगे इसको, घबराना नहीं। एग्जाम में इसको नोट करो जल्दी से। ओके, एक पॉइंट और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग रिपीट होता रहता है, समझे? और लिखो लिखो तो, if two vectors have same magnitude, if two vectors, next important point is if two vectors have same magnitude, if two vectors have same magnitude, then resultant bisect the angle between two vectors. If two vectors have same magnitude, then resultant bisect the angle between two vectors. Two vectors have same magnitude, then resultant bisect the angle between two vectors. Then resultant bisect the angle between two vectors. Mod of p vector is equal to mod of q vector, then alpha और बीटा is equal to theta by 2. उसको सीधा रट लो, डायरेक्ट एग्जाम में तुम अप्लाई करना, क्वेश्चन सब में प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। If two vectors have same magnitude, then resultant vector bisect the angle between them. That means theta alpha or beta is equal to theta by 2. इसको प्रूफ करके दिखा रहे, देखो लिखना मत नहीं, इम्पोर्टेंट मत देखो यार, इसका प्रूफ देखो तो। Suppose this is vector p, this is vector q, and this vector is resultant. Theta is the angle between vector p and vector q. Alpha is the angle between resultant. Suppose alpha is the angle between resultant and vector p. Okay. So since tan alpha, क्या है tan alpha का वैल्यू जल्दी बताओ। tan alpha is equal to किसके साथ बनाया अल्फा, p को छोड़ो, q sin theta divided by p plus q cos theta. According to condition A, mod of p vector is equal to mod of q vector. This equation can be written as tan alpha is equal to q sin theta divided by q plus q cos theta. सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। p और q का वैल्यू को हमने सेम कर दिया है, यहाँ q रख दिए, q कॉमन लो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा sin डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos। ओके, अब लगाओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 9-10 का चीज है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइन का वैल्यू क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ओके, और 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट, 8 cos b कट, कितना आ गया ये देखो तो, tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 cos tan थीटा बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओनली थीटा बाई 2, हेंस प्रूव अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और यहाँ क्या देख रहे हो तुम, सपोज करो ये एंगल अगर बीटा है, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज थीटा बाई 2, so beta will be theta by 2, hence proof if two vectors have same magnitude, then resultant bisect the angle between two vectors. Understood? रुको लिखो मत, पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट। नोट करो जल्दी से, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर।
अरे तुमको तो फोन जो है 2 दिन बाद बोला था, आज टपक गया तो सब छूट जाएगा। हाँ छूट जाएगा, ठीक है ना सर। हाँ एकदम अच्छा जाएगा, सब आना। तो करिए, काम करो, अब आगे बढ़ाते हैं। वो स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ का। उसके बाद अब न्यूमेरिकल बनाना और अच्छा इजी होगा। ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सब चीज करके तब जो क्वेश्चन करेंगे ना, टाइम भी बचेगा, जल्दी जल्दी सब न्यूमेरिकल बनाएंगे। This is vector P and this is vector Q. Apply the concept of like vectors. The concept of like vectors in previous class. In previous class. तो like vector का फंडा देखो तो फटाफट अब सॉल्व होता है कि नहीं। ये P है ना, ये Q vector है। When vector moves along same direction. When a vector moves along same direction. When a vector moves along same direction, length same, direction same, remains unchanged. This is also called vector P. क्या सही है कि नहीं है? देख रहे हो, अगर ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर मान के चलो, अगर 2 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस कर दिया, लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, वेक्टर रिमेन्स सेम. This is also called vector P. Similarly, इसी डायरेक्शन इसको प्रोड्यूस करो, again length same, direction same. This is also called vector Q. Join this to this. Join this to this. This is resultant. ये हो गया सब इसको resultant. Triangle 1, triangle 2, triangle 1, triangle 2. ठीक. Apply triangle law in triangle 1. देखते रहो यहाँ पर. Apply triangle law. Apply triangle law in triangle 1. Head to head. Head combination vector is called resultant. This resultant vector becomes equal to vector Q plus vector P. Two vectors are connected in same ordered pair. These two vectors, this summation of two vectors becomes equal to resultant. So resultant vector R is equal to Q plus P vector. Equation number 1. Similarly, same triangle law applied in triangle 2. In triangle 2. तुम लोग बताओ क्या लिखोगे? In triangle 2. ठीक. In triangle 2, tail to head, head to tail. Again, this is resultant. Now this resultant vector R is equal to vector P plus vector Q. Vector P plus vector Q. This is equation number 2. Equating first and second, we get ये वैल्यू यहाँ रख दो. From first and second. From first and second, we get क्या हो जाएगा बताओ? P plus Q vector becomes equal to Q plus P vector. Hence proved. देखो आया कि नहीं आया? Addition of two vectors satisfies commutative law. प्रूव करके दिखा दिए. जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़ाओ. समझ में आया कि नहीं बताओ? ट्रायंगल लॉ से प्रूफ किए, नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है. is equal to vector P plus vector Q, and P plus Q vector can be written as Q plus P vector. That's why addition of two vectors is by commutative law.
Addition of two vectors satisfy iterative law. एक काम करते हैं, ट्रिपल स्टार बना के एक नोट लिखो. Triangle law helps. Triangle law helps when resultant is perpendicular to. ट्रिपल स्टार बना के एक नोट पॉइंट लिखो. Triangle law helps. Triangle law helps when resultant vector is perpendicular to. When resultant vector is perpendicular to. Resultant vector is perpendicular to vector P or vector Q. Triangle law helps when resultant vector perpendicular to vector P or vector Q. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करा देगा, लगाओगे ना तो सॉल्व कर देगा, 5 मिनट लगेगा. देखो क्या नोट में लिखा दिए हैं. रिजल्टेंट वेक्टर, इफ resultant vector is perpendicular to vector P or vector Q, then apply triangle. लिख लो. ठीक है, 54 सेकंड लगता है कैलकुलेट करके बता. लिखो तो लिखो और करके और सिंपल ये कर दे रहे हैं. If vector is perpendicular to vector P or vector Q, if resultant vector is perpendicular to vector P or vector Q, then apply triangle. If resultant vector is perpendicular to vector P or vector Q, then apply triangle law. Then apply triangle law. ये चलते एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं ना. जैसे ही रिजल्टेंट किसी एक के परपेंडिकुलर दिखे, तुरंत लगा देना है ट्रायंगल लॉ. ठीक, ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं. क्वेश्चन लिखो तो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, बराबर लिखे जाओ. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर P and वेक्टर Q. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर P and वेक्टर Q is perpendicular to. I repeat, the resultant of two vectors, vector P and vector Q, is perpendicular to vector half of the magnitude of the vector B. Half of the magnitude of vector B. Half of the magnitude of vector B. Find out the angle between vector A and vector B. Find out the angle between vector A and vector B. Option A is 30 degree. Option B is 150 degree. 150 है. C है 60 degree. D है 90 degree. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब देते हैं, 5 क्वेश्चन सब देते हैं, पूछा हुआ प्रॉब्लम है. क्वेश्चन सुन लिए, समझ लिए, ट्राई करो तो एक बार. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू half of the magnitude of vector B.
फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। देखो हम कितना शॉर्टकट एक ट्रिक बताए हैं तुम्हें, उसको सीधा अप्लाई करना एग्जाम में। जो मेडिकल का जो एग्जाम होता है ना, वो कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक से काम चलता है। कॉन्सेप्ट तो खैर होना ही चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए। देखो बताते हैं अभी कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। जनरल कॉन्सेप्ट से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम पहले बता देते हैं, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी हम ट्राई करते हैं, बताते हैं तुमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली यही फिगर बनेगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। इसको तुम बोल दो वेक्टर बी, ये एंगल मान लो थीटा। क्या ए और बी के बीच का एंगल थीटा होगा, हमें बताओ तो तुम, तब देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट बनाया हमसे सीखा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं। तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? What is the angle between vector A and vector B? Not 90, A और B के बीच का एंगल पूछ रहे हैं। A और B के बीच का एंगल, A और B याद है तुम्हें क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिए थे। When two vectors then a smaller angle is an angle between two vectors. Is it or not this is combination. So this theta is the angle between vector A and vector B. Now what will happen? This vector A produce same direction. Same direction. Apply the concept like vector. Vector same direction, same vector shall be on vector B. Sorry. अब ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा का कांसेप्ट 9 क्लास के लिए पहुंचा सारे क्वेश्चन को विद दिस सेकंड आंसर सामने आने वाले हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या रह रहा है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर इसका करने के लिए b by 2 into 1 by b, तो sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का 30 डिग्री हो जाएगा 150। तो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी इज 150 डिग्री, थीटा का इज 150 डिग्री। बताओ देखिए सेकंड में प्रॉब्लम बनाने का ट्रिक तुम्हारे दिमाग में आ जाती है। और जो ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पूरा लगाया जाएगा, जब तुम पूरा लगाया जाएगा तुम देखो ना और पॉइंट में आना है ना, ये देखो तुम अरे क्वेश्चन सब बना रहा है, इसी टाइम में बना है। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट सब पर दोनों तरीका पर पता होना चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट और सभी शॉर्ट बनना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ है। फिर से हम बता रहे हैं जो क्लास आज घंटा रहा मेरा सब सुन लो। रिजल्ट ले गई कैसे बता रहे हो ना, रिजल्ट ले गई इसी वेक्टर से अगर 90 डिग्री बनाना लगा रेक्टेंगल लो, एक सीधी बात बता रहे हैं, छोटी सी लाइन बता दी। if resultant vector if resultant vector is perpendicular to vector A or vector B, then right rectangle। अगर रिजल्टेंट वेक्टर या तो वेक्टर A के साथ या वेक्टर B के साथ 90 बनाया है, सीधा बनाना है ट्रायंगल लो, सीधा बनाना है ट्रायंगल लो। बस आता
वेक्टर ए और वेक्टर बी, दूसरा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वो तो टेल कॉम्बिनेशन होता नहीं हेड टू हेड में, इसको प्रोड्यूस किए, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 180 माइनस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो राइट आंसर इज 150 डिग्री। एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी कर दिए दोबारा, समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या बात है, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, तीनों का तीनों बहुत अच्छे से समझा दिए, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिए। ऐसा ही क्लियर कॉन्सेप्ट होल मैकेनिक्स में देंगे, वैसा ही क्लियर कॉन्सेप्ट हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न फिजिक्स, होल फिजिक्स। हम पहले दिन भी बोल दिए थे, प्रॉमिस किए थे क्लास में कि मेरा एक चैप्टर भी होल फिजिक्स में कम ज्यादा नहीं करता, हर में मैटर हो ऐसा ही है, सब में शॉर्ट ट्रिक है, सबका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट। कोई नहीं कह सकता कि आप मॉडर्न थोड़ा कम पढ़ाए, हमें मैकेनिक्स थोड़ा ज्यादा पढ़ाए, नहीं नहीं, ये चीज तो नहीं होगा ना, इसी लेवल में होल फिजिक्स, इसी लेवल में होल फिजिक्स। ठीक, आगे बढ़ाते हैं हम, चलो बहुत अच्छा हो, समझ गए तुम, आगे बढ़ाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, एक न्यूमेरिकल पहले बना लो, एक न्यूमेरिकल बनाओ, ये सर्कल ड्रॉ करो, ठीक, सर्कल ड्रॉ करो, 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB and OC, OA, OB vector and OC vector. Find the resultant of three vectors. Find the resultant of three vectors. Radius of circle is R. Radius of circle is R. Find the resultant of three vectors. Radius of circle is R. Option number A, √2R. Option number B, R into 1 plus √2. Option number C, √2R. And option number D, R into 1 minus √2. क्वेश्चन फिर बोल दे रहे एक बार सुन लो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर, OA, OB and OC वेक्टर, radius of where radius of circle is R, radius of circle is R. ओके, थ्री वेक्टर्स का रिजल्टेंट पूछा है, थ्री वेक्टर्स का, दो वेक्टर थोड़ी ना है, थ्री वेक्टर्स है, OA, OB and OC. Right answer is option number B, R into 1 plus √2. I am going to explain. आप देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हुए थे, तीन वेक्टर का रिजल्ट बनाना है, ठीक है बना लेंगे, क्या दिक्कत है, देखो नहीं आप बताते हैं, एक काम करो अलग से समझाते हैं। दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OB वेक्टर, ये भी है R, ये भी R. टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड,
OA mod OB vector mod is equal to R. If two vectors have same magnitude, then resultant bisect the angle between two vectors. इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री. बाइसेक्ट करेगा तो सीधा यहाँ 45 से पास करेगा ना, ये तो 45 से पास करेगा. अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? OA OB का रिजल्टेंट बताओ तो मुझे. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r² cos 90 डिग्री. cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0. वो तो गया उधर से. r² प्लस r² 2r² का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2r. ये हो गया √2r. 45 से पास करेगा. उसी डायरेक्शन में OB भी तो है. उसी डायरेक्शन में OB वेक्टर भी तो है. इधर ही है √2r और इसी डायरेक्शन में है r. रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर कॉमा OB वेक्टर कॉमा OC वेक्टर इज इक्वल टू √2r प्लस r. r कॉमन ले लो. √2 प्लस 1 इज राइट आंसर. कॉन्सेप्ट क्लियर? फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन शॉर्ट ट्रिक. दो चीज पर फोकस करना है. डायरेक्ट ट्रिक वाला तो उड़ जाएगा हवा में, उसका कोई काम ही नहीं है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन शॉर्ट ट्रिक. दो चीज को तैयार करो, सारे प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में. देख रहे हो दोनों वेक्टर कहां से पास कर रहा है? एंगल ऑफ बाइसेक्टर. इसका रिजल्टेंट कितना हो गया? √2r. This √2r is only the angle resultant of OA and OB. In the figure, three vectors are given: OA, OB, and OC. This √2r is the resultant of OA and OB, and this is the OC vector. OC vector is also called vector R. ये क्वेश्चन में पहले से दिया था 45. नहीं भी दिया रहा था 45 ही होता वो. अभी कॉन्सेप्ट दिए थे ना, गिवन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, देन रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. एंगल बिटवीन OA and OB is 90 degree and having same magnitude. That means its resultant bisect the angle between them. It passes through 45 degree. और उसी डायरेक्शन में R भी है, दोनों को ऐड कर दिए, काम हो गया. आगे बढ़ेंगे. ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ. बहुत अच्छा क्वेश्चन. बोलते हैं क्वेश्चन लिखो तो एक बार. Which of the following representation is incorrect? Which of the following representation is incorrect? Not correct, incorrect. क्वेश्चन का एक लेटर चेंज करके घुमा दे रहा है सवाल को. क्या पूछ रहा है? देखो फिर हम दोबारा बता देते हैं क्वेश्चन. Which of the following representation is vector equation R vector is equal to P plus Q. R vector is equal to P plus Q. P plus Q. I repeat, which of the following representation is incorrect? Is incorrect. For vector equation, R vector is equal to P vector plus Q vector. R vector is equal to P plus Q vector. इसके साथ कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो बताना है. समझ गए? हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, बना लो. फिर भी हम थोड़ा सा फिगर और
बताओ कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इनकरेक्ट ढूंढना है तुम्हें, ये समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट ढूंढना है, वो आंसर वो सही होगा। उत्तम न्योपाने, कॉन्ग्रेचुलेशन। रोशन शाह करेक्ट, राज जवाली करेक्ट, अजहर बसनेत करेक्ट, रणवीर झा करेक्ट, आकृति पंडित करेक्ट, ठीक ही बोल रहे हो लेकिन आंसर वो करेक्ट हुआ। शिव शाह करेक्ट। चलो, करेक्ट बनाने का मतलब ही हुआ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तभी ना बना लेते क्वेश्चन सब। अब देखो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसको सेटिस्फाई करने वाला ये तीनों का तीनों, इसे ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर, मतलब ये आंसर करेक्ट है। ढूंढना था कि कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। चलो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी बताओ। टेल टू हेड टू टेल आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है यार। चलो हटाओ, इसको देख लो, अभी अभी बताए थे पैरेललोग्राम लॉ में, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस वेक्टर क्यू। नहीं कर रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट फॉर वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। हटाओ सी, टेल टू हेड हेड टू टेल, आर वेक्टर इज इक्वल टू, सी का यहाँ लिख दे रहे हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, Q plus P can be written as P plus Q. तो ये बताना, Q plus P है, लिख सकते हैं P plus Q से, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका देखो, टेल टू हेड हेड टू टेल, now P vector is represented, this vector P is equal to R vector plus Q, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला आंसर हुआ करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोलना है पहले बताओ, इससे बताओ ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, नहीं है सर, डाउट, कोई डाउट नहीं, डाउट जा रहा है कॉन्सेप्ट, है ना, अच्छी कोशिश करवाते जा रहे हैं। स्टार्टिंग का जो बनाया ना मैकेनिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ना, अभी आगे काइनेमेटिक्स सब भी आएगा, इसके बाद वही होगा। हम उसे फर्स्ट लेक्चर में मोशन इन मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मोशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशन मोशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को, एडिशन को, हाँ रोशन पूछा था सर टाइम वो वाला सर और बता दीजिए ना, लोग बता देते हैं, ये तो है, यही है, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, यही है, ये 45, ये भी है 45, इसको ध्यान देखो, ये है वेक्टर R, ये है वेक्टर R, मैग्नीट्यूड R हुआ, रेडियस है ना सर्कल का, सब सेम होगा, OA, रिजल्टेंट क्या होगा, इतना तो समझ गए, √2R। रोशन
करेगा बाइसेक्टर से, क्या? बोलो बोलो। थर्ड वेक्टर भी तो इधर ही है, थर्ड वेक्टर भी तो इधर है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Suppose if theta is equal to 0 degree, 0 degree means both vectors have same direction. Cos 0 1, a square plus b square plus 2ab, r का वैल्यू क्या होगा, a plus b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a plus b ये क्या हो जाएगा, दो वेक्टर में कन्वर्ट करके। अब दो वेक्टर कौन कौन सा है, दिस इज रूट 2r एंड दिस इज r। ये a और OA और OB का रिजल्टेंट है, ये OC, दोनों सेम डायरेक्शन में। रिजल्टेंट क्या होगा, रूट 2r, देख रहे हो, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, रूट 2r प्लस r कॉमन ले लो, रूट 2 प्लस 1 इज द राइट आंसर, रूट 2 प्लस 1 इज राइट आंसर। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एडिशन पढ़े, पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, यही सिलेबस है वेक्टर का, डिवीजन डिफाइन होता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट टॉपिक इज हेडिंग लगा अभी पर, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। लगाया कि नहीं हेडिंग, जल्दी बता। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, ये चलो देखो, अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखो। अब जैसे तुम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वैसे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर फर्स्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे